Hello, good morning to all Good online. morning, sir. Blackboard here है? Good morning, Yes, sir. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. यहाँ से दिख रहा है क्या? यहाँ से दिख रहा है? दिख रहा है सर नहीं, राइट। और ऊपर से लिखने से दिखता है क्या? यहाँ से? हाँ? नहीं दिख रहा क्या उधर से? अब यहाँ से दिख रहा है? यस No, सर, सर। sir. हाँ? वहां से दिख और रहा है नीचे सर, लिखना है? दिख रहा है? दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है ना? हाँ? बड़ा लिखो। ये छोटा सा है ना, इसलिए छोटा लिख रहा हूँ। भर जाता है जल्दी।
तो जैसे कि पिछली बार डिस्कस किए थे, लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ लोगों को डाउट था तो इसीलिए अगेन आई एम एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करना है कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज नो इनहेरेंट स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, खुद से स्टार्ट नहीं होता है सिंगल फेज मोटर। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो वाई इट इज नॉट ए इनहेरेंट, इट इज नॉट ए सेल्फ स्टार्ट मोटर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड टेक्निकली। तो ये जो है ये स्कीमेटिक डायग्राम है सिंगल फेज मोटर का, इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मतलब व्हेन रोटर इज नॉट मूविंग। ठीक है, क्योंकि अपने को एक्सप्लेन करना है कि रोटर की मोटर क्यों स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए ये जो डायग्राम है दिस इज फॉर द स्टैंड स्टिल मोटर। रोटर इज नॉट मूविंग, that means speed of this motor is 0. So this is the schematic diagram, and as already discussed, motor has stator and rotor, और स्टेटर में होता है मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, तो अभी ऑक्सिलरी वाइंडिंग वी आर नॉट इंक्लूडिंग बिकॉज वी आर डिस्कसिंग व्हाई इट इज नॉट ए सेल्फ स्टार्ट मोटर। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा दिया है, केवल मेन वाइंडिंग वी हैव इंक्लूडेड। दिस इज द मेन वाइंडिंग ऑफ द स्टेटर, स्टेटर मेन वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग का दो टर्मिनल होता है, तो स्टेटर मेन वाइंडिंग, वाइंडिंग ऐसे होता है। ठीक है, एंड वीएस, वीएस इज द सप्लाई, सप्लाई वोल्टेज गोइंग टू द मेन वाइंडिंग। This VS is the single phase supply voltage. ठीक है, this is single phase induction motor, so this is single phase supply that is going to the main winding located in the stator, and IS सप्लाई देंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा IS। ठीक है, IS going to the main winding and then a closed path it follows, and psi s is the stator flux. Similarly, either rotor, this is squirrel cage rotor, and these are the polarity of the current, cross and dots. वो कैसे होगा ये बताएंगे। ठीक है, and psi r is the rotor flux, psi r is the rotor flux. Now during standstill, when the rotor is not moving, the single phase induction motor exactly behaves like a single phase transformer under short circuited condition. That means the secondary of the that means the rotor is short circuited, at which the load is connected, that is short circuited. ठीक है, that means no load is connected, so this motor behaves like a short circuited transformer, single phase transformer. ठीक है, now when we give a single phase voltage supply to the stator winding, then it produces the single phase current IS. This single phase current, when it goes to the winding, then it produces the MMF. It produces the MMF. This MMF is nothing but it is N into IS. N into IS. If N is taken as 1, assume number of turns of this winding is equal to 1. Only one turn is there, then N can be omitted. ठीक है, so IS, this produces the current when goes to the winding, produces magnetomotive force MMF, and this magnetomotive force is
stationary but pulsating in magnitude. This is the waveform for stationary but pulsating waveform of stator MMF wave. ठीक है, इससे क्या पता चलता है? दिस इज alternating in polarity and varying sinusoidally with time. है ना, पहले पॉजिटिव आया, फिर उसके बाद नेगेटिव वेवफॉर्म आया, then again positive waveform, then negative waveform. That means it is alternating in polarity, plus minus, but it is pulsating in magnitude. ये magnitude है उसका, pulsating in nature, and variation of this waveform is sinusoidal. Sinusoidal waveform है, variation है with respect to time, omega t. So this is the waveform which is generated when you give a single phase supply to the winding. थ्री फेज केस में नहीं होता है, थ्री फेज सप्लाई दोगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता है. यू विल गेट अ साइनसोइडल सप्लाई, साइनसोइडल वेवफॉर्म, नॉट पल्सेटिंग वेवफॉर्म. ये पल्सेशंस नहीं रहते हैं अगर थ्री फेज देंगे तो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में. ठीक है, पल्सेशंस नहीं होता है, ऐसे साइनसोइडल वेवफॉर्म जनरेट होता है. बट in single phase case you will get this type of waveform, and because of this waveform the motor does not start, rotating magnetic field does not generate because of this pulsating waveform. That is the difference between the three phase induction motor and the single phase induction motor. तो इसकी वजह से स्टार्ट नहीं होता है. ठीक है, अब क्यों, उसका और रीजन है. तो ये हो गया, ये कौन सा एमएमएफ है ना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स दैट इज जनरेटेड इन दी स्टेटर वाइंडिंग. ठीक है, नाउ दिस प्रोड्यूसेस this magnetomotive force produces psi s. Psi s is the stator flux, stator current ये है, एमएमएफ ये है, it produces flux. ठीक है, this flux psi s is also alternating but pulsating, है ना. psi flux and current are both proportional, है ना. करंट से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, थोड़ा बहुत हिस्टेरिसिस लॉस होगा तो थोड़ा बहुत लैगिंग होगा, बट it follows the same waveform. Flux will follow the same waveform, alternating but pulsating in magnitude. Magnitude मतलब amplitude, maximum amplitude. तो at maximum amplitude this is pulsating, तो फ्लक्स भी पल्सेटिंग रहेगा. ठीक है, नाउ इतना हो गया. रोटर क्या है? रोटर इज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, बट आवर फ्लक्स इज अल्टरनेटिंग एंड वेरिंग साइनसोइडली but pulsating. So by transformer action, a transformer voltage will be induced in the rotor. ठीक है, ट्रांसफार्मर एक्शन से. ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, दोनों स्टेशनरी रहता है. ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, लेकिन वोल्टेज कैसे जनरेट होता है सेकेंडरी में? व्हेन यू गिव सिंगल फेज सप्लाई टू द प्राइमरी, because of the transformer action, because of the induction principle, है ना. voltage is induced in the secondary because of the single phase supply variation. Similarly here also this alternating but sinusoidal
variation of psi s will induce a voltage VR in rotor by transformer action. It will induce a voltage. दोनों स्टेशनरी है, ठीक है. This voltage will produce a large amount of current. Large amount क्यों? Because secondary is short circuited, है ना. सेकेंडरी मतलब रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड. तो शॉर्ट सर्किट वाला कंडीशन में बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता है ना. शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज्यादा रहता है. सो लार्ज अमाउंट ऑफ रोटर करंट विल बी प्रोड्यूस इन दी in this rotor. So this large rotor current, when it links with the conductors, squirrel cage है, conductor, it will produce a rotor MMF. It will produce a rotor MMF. So this rotor MMF produces rotor flux, which is psi r, and it opposes the psi s at all instant of time. Why it opposes the psi s at all instant of time? है ना. रोटर करंट प्रोड्यूस होगा बिकॉज इट है, दो पोलैरिटी जनरेट हो गया. देखिए, यू कैन सी द क्रॉस at one part of the circle, at one part of the rotor, a cross denotes the one polarity of current, and dots, ये dot है, dot denotes the another polarity of current. So two polarity is generated, so current will produce, है ना. voltage will be induced, है ना. यहाँ voltage induce होगा, which will produce a huge amount of current, and this current produces the psi r, rotor flux, which is also alternating and pulsating in magnitude, but it opposes the psi s at all instant of time. Why it is opposing psi s at all instant of time? Because it behaves like a transformer. It behaves like a transformer. ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है. I1 is the primary current, V1 primary voltage, I2 secondary current, V2 secondary voltage. Theta is the power factor angle between V2 and I2. Psi is the flux. Magnetizing current is neglected. Then I1 and I2 are equal and opposite to each other. क्यों होता है? देखिए, I2 जब करंट वहां फ्लो होगा सेकेंडरी में, इट विल, वेयर इट विल गेट पावर फॉर I2 फ्लो होने, I2 जनरेट होने के लिए पावर चाहिए. इट विल ड्रॉ पावर फ्रॉम दी प्राइमरी. सो इक्वल अमाउंट ऑफ I2 equal to I1 will be generated in the primary. So that's why they are equal and opposite. See, there is a law for drawing a power. A voltage opposite to the supply is generated for drawing the power. When you see the DC motor में एक बैक EMF जनरेट होता है. क्यों होता है? In order to, which is equal to the supply voltage, equal and opposite to the supply voltage. क्यों होता है? Because for drawing the power from the supply, a back EMF is generated, which is equal and opposite to V1. है ना? Similarly, in the case of three-phase induction motor, उसमें भी एक काउंटर EMF जनरेट होता है ना? Similarly, in the case of ट्रांसफार्मर में भी एक बैक, कौन सा EMF, बैक EMF जनरेट होता है ना? प्राइमरी में एक EMF जनरेट होता है, which is equal and opposite to the supply. V1 equal to minus E1. If drop is neglected, है ना? So if this is a transformer,
E1 जनरेट होता है इधर प्राइमरी में, विच इज इक्वल टू V1 बट ऑपोजिट टू ईच अदर. दिस इज बिकॉज टू ड्रॉ द सप्लाई, टू ड्रॉ द पावर फ्रॉम द सप्लाई, दिस opposing EMF is generated. This is the law. ठीक है. Similarly, here in the case of transformer, I2 is generated which is equal and opposite to I1 in order to draw the power from the supply. Now in this case also, the rotor flux, है ना, the rotor flux is always is equal and opposite to psi s in order to draw the power from the single phase supply connected to the stator winding. So इसलिए the rotor mmf, we don't say that the rotor flux and stator flux are opposite to each other. We say the rotor mmf thus generated are equal and opposite to the stator mmf at all instant of time at standstill condition. ठीक है. तो एमएमएफ, रोटर एमएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा? रोटर फ्लक्स. स्टेटर एमएमएफ स्टेटर फ्लक्स. तो अपन कहते हैं कि रोटर एमएमएफ एंड स्टेटर एमएमएफ आर देयरफॉर ऑपोजिट टू ईच अदर बट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है. नाउ अब टॉर्क का इक्वेशन देखेंगे. टॉर्क इक्वल टू, this torque is electromagnetic torque or mutual torque, that is interaction between the stator flux and the rotor flux. So torque equal to psi s into psi r into sine of psi s psi r. ठीक है. दोनों इक्वल है. नाउ psi s into sine of theta, angle between psi s and psi r is 180 degree. Equal and opposite है, they are opposite to each other. So sine of 180 degree हो जाएगा. psi s psi r into sine 180 degree. तो sine 180 कितना होता है? 0. तो टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो स्टार्टिंग टॉर्क इज 0. So that's why due to this reason the starting torque of single phase induction motor is 0. So that's why it has inherently it is not a self start motor. तो ऐसा आएगा. ठीक है. तो ऐसा एक्सप्लेनेशन करना है. आ रहा है समझ में? ऑनलाइन वाले Yes, sir. नाउ अभी एक और चीज है इसमें. ये जो है दिस इज दी स्टेटर मेन वाइंडिंग एक्सिस. ये देखो स्टेटर मेन वाइंडिंग एक्सिस. कोई सा भी वाइंडिंग होता है, जैसे ये एक वाइंडिंग है. ठीक है. इस वाइंडिंग का एक्सिस कौन सा है? मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं? और मेन वाइंडिंग का एक्सिस को किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दी वाइंडिंग एक्सिस? वेयर मैक्सिमम फ्लक्स इज प्रेजेंट
maximum amplitude of flux is present, that line is called the winding axis. तो कोई सा ये वाइंडिंग, ये इस वाइंडिंग का एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, ठीक है. हियर maximum flux, that means maximum amplitude of psi s is present in this axis, ठीक है. maximum amplitude of flux is present, that means स्टेटर का वाइंडिंग एक्सिस ये है, ये फ्लक्स है ये, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस लाइन में आ रहा है. दीज आर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, so this is the stator main winding axis, ठीक है. करंट जा रहा है ना, वाइंडिंग में करंट जा रहा है, वहां से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो ये दिस इज द स्टेटर मेन वाइंडिंग एक्सिस, ये भी स्टेटर मेन वाइंडिंग एक्सिस. तो स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे शो करेंगे, दिस इज द मेन वाइंडिंग एक्सिस. तो मेन वाइंडिंग एक्सिस में क्या होता है, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ साई एस is shown, resultant amplitude of stator flux is shown, which is maximum across the winding, ठीक है. तो ये टर्म है, आगे भी यूज होने वाला है, so that's why explained. आया समझ में, स्टार्टिंग टॉर्क है ना, ठीक. तो अभी जो डिस्कस किए, दिस इज फॉर दी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है. इसमें देखिए मेन वाइंडिंग केवल प्रेजेंट था, ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्रेजेंट नहीं था. दो वाइंडिंग होता है स्टेटर में, एक मेन वाइंडिंग होता है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है स्टेटर पेरीफेरी में, ठीक है. स्टेटर स्लॉट्स में मेन वाइंडिंग 2/3 ऑफ द स्लॉट्स ऑफ स्टेटर इज वुंड बाय मेन वाइंडिंग एंड रेस्ट ऑफ द स्लॉट्स आर वुंड आर ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है. तो इसको स्टार्ट करने के लिए वी नीड अ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, but here auxiliary winding was absent, so in that case it was not a self start motor, ठीक है. but once motor is started by
auxiliary, by some auxiliary means, by inserting the auxiliary winding along with the main winding in the stator slots, है ना, वो रहता है सर्किट में रहता है, बट उसको डिस्कनेक्ट करने का एक स्विच होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, दैट इज कॉल्ड दी सेंट्रीफ्यूगल स्विच. ठीक है. So once the switch is made, switch is manipulated in such a way that the auxiliary winding comes in the circuit along with the main winding, then it started, and once it started, it continues to run in that direction. After that, we don't need the auxiliary winding for maintaining the speed of the motor. 70 to 80% of synchronous speed when it attains, then it starts moving on its own. There is no need for auxiliary winding, है ना. Then we can then it is desirable to disconnect the auxiliary winding with the help of centrifugal switch, and this is necessary in order to avoid the losses in the auxiliary winding under the running condition. ठीक है. तो रनिंग परफॉर्मेंस, अभी तो क्या है, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस डिस्कस किए थे, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. नाउ रनिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज एक्सप्लेन्ड बाय टू थ्योरी. ठीक है. That means motor has started by auxiliary means and it is running at some speed. उसको क्या बोलते हैं, रनिंग परफॉर्मेंस, है ना. तो उस केस में द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर इज एनालाइज्ड with the help of two theory, cross field theory and another one is revolving field theory. तो क्रॉस फील्ड थ्योरी जो है, क्रॉस फील्ड थ्योरी इज दी टू एक्सिस थ्योरी, D and Q, two axis, D axis horizontal axis, Q axis vertical axis. So cross field theory is not will not be discussed, क्योंकि वो नहीं है सिलेबस में, यूनिट 3 में नहीं है. ठीक है. तो अपने को क्या करना है, अपने को रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पढ़ना है. रिवॉल्विंग, विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, दी रनिंग परफॉर्मेंस. रनिंग परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, रनिंग परफॉर्मेंस में क्या क्या निकालते हैं, स्पीड निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, पावर निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, है ना. So these are all the running performance parameters which is to be evaluated. So these parameters are evaluated with the help of revolving field theory. ठीक है. रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हेल्प से उसको रनिंग, ये सारे पैरामीटर्स which comes under the running performance, under the category of running performance of single phase motor is used.
ठीक है, तो रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में क्या है, इट यूजेस रोटेटिंग फील्ड कंसेप्ट, है ना। रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी यूजेस रोटेटिंग फील्ड कंसेप्ट। तो रोटेटिंग फील्ड कंसेप्ट मतलब जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग फील्ड जनरेट होता है, उसका कंसेप्ट इसमें लगेगा बाय यूजिंग दिस थ्योरी। क्योंकि इसमें क्या है, पल्सेटिंग वेवफॉर्म जनरेट होता है, रोटेटिंग फील्ड जनरेट नहीं होता है, स्टेशनरी बट पल्सेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका एनालिसिस डिफिकल्ट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, है ना। So in order to make easier the analysis of single phase induction motor, a revolving field theory has come up. रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होता है, उसमें रोटेटिंग फील्ड कंसेप्ट रहता है, और उसको अप्लाई करने के बाद वी कैन एनालाइज द सिंगल फेज मोटर वेरी इजीली, सिमिलर टू द सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो क्या है, इजियर हो जाता है, रोटेटिंग फील्ड कंसेप्ट लग जाता है इसमें। So that's why the revolving field theory has come up in order to simplify the analysis of single phase induction motor under running condition. तो क्या होता है वो थ्योरी, व्हाट इज रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, दैट वी विल नाउ डिस्कस। ठीक है, और ये जो क्रॉस फील्ड थ्योरी है, क्रॉस फील्ड थ्योरी में डी क्यू एक्सिस थ्योरी है, 2 एक्सिस थ्योरी इज यूज। So 2 axis theory we are not it is not in the course। ठीक है, वो जनरलाइज थ्योरी में आता है, जनरलाइज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो डी एंड क्यू क्या, 2 फेज हो जाता है, 2 वेरिएबल डी एंड क्यू, तो अकॉर्डिंगली इट इज एनालाइज। तो वो कोर्स में नहीं है, तो रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी अपने को पढ़ना है।
रिवॉल्विंग फ्लूइड थ्योरी क्या होता है ना? तो उसका एक स्टेटमेंट है, रिवॉल्विंग फ्लूइड थ्योरी स्टेट्स दैट स्टेशनरी पल्सेटिंग स्टेटर एमएमएफ वेव, दिस इज स्टेटर एमएमएफ वेव, ठीक है। ये वेवफॉर्म जो है एफएस, कैपिटल एफएस, कैपिटल एफ सबस्क्रिप्ट एस, एफ डिनोट्स द एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एंड सबस्क्रिप्ट एस डिनोट्स द स्टेटर, तो स्टेटर एमएमएफ, ठीक है। तो वाई एक्सिस स्टेटर एमएमएफ और एक्स एक्सिस ओमेगा टी, ओमेगा टी मतलब टाइम वेरिएशन, एंगुलर टाइम वेरिएशन, दिस इज वेरिंग एंगुलरली, ठीक है। लीनियरली तो वेरी नहीं कर रहा है, ये एंगुलरली वेरी कर रहा है, दैट्स व्हाई ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इज दी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना रहता है 50 हर्ट्ज, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है द रेट ऑफ रिपीटेशन इज 50 हर्ट्ज, 1/50, तो सेकंड में हो जाएगा। तो ओमेगा टी नॉट टी, ओमेगा एंगुलर, एंड एफ एस इज दी वाई एक्सिस स्टेटर एमएमएफ वेवफॉर्म। तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मेन वाइंडिंग में अगर सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो सिंगल फेज अल्टरनेटिंग बट पल्सेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, तो व्हेन इट passes to the main winding it produces stationary alternating but pulsating MMF waveform which looks like this one, so that's why FS stator MMF wave। तो ये क्या है, दिस इज वेरिंग, कैसे वेरी कर रहा है, इट इज वेरी साइनसोइडली, साइनसोइडली वेरी कर रहा है, बट इट इज स्टेशनरी, it is stationary in space, it is stationary but varying sinusoidally and pulsating in magnitude, the magnitude is pulsating, देखिए पल्सेट हो रहा है, ये ऐसे है ना, नीचे भी पल्सेशन है, फिर और इसका वेवफॉर्म में तो कंटिन्यूअस है, इट इज वेरिंग साइनसोइडली, तो एक ही टाइम पीरियड का वेवफॉर्म बताया हमें, बट इट इज कंटिन्यूअस and but pulsating in magnitude, so fs max क्या है, this is the maximum amplitude of stator mmf wave, this point is the
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक, इट इज एफएस मैक्स, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेटर एमएमएफ वेवफॉर्म। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, दिस स्टेशनरी but pulsating stator MMF wave can be resolved into two counter rotating MMF wave. These are the two counter rotating MMF wave of equal amplitude. Equal amplitude मतलब half fs max. इसका काउंटर रोटेटिंग है ना, इसका मैग्नीट्यूड हाफ एफएस मैक्स, इसका भी मैग्नीट्यूड हाफ एफएस मैक्स, equal amplitude but revolving in opposite direction, revolving in opposite direction. See, you can see the arrow, one is revolving in counterclockwise direction and another one is revolving in, नहीं इधर ये जो रहा है, ये वाला जो है rotating MMF wave is revolving in clockwise direction and this one is revolving in counterclockwise direction. So according to revolving field theory, the stationary but pulsating MMF wave can be resolved into two counter rotating MMF wave. These are the two counter rotating MMF wave of equal amplitude equal to half fs max but revolving in opposite direction in at synchronous speed. ठीक है, इसका स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, इसका भी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है, बट रिवॉल्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है हाफ एफएस मैक्स, इसका भी हाफ एफएस मैक्स, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, एफएस मैक्स विच इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेटर एमएमएफ वेवफॉर्म फ्रॉम विच दिस टू रोटेटिंग एमएमएफ वेव हैज बीन केम अप, है ना, इसको स्प्लिट किया है दो रोटेटिंग एमएमएफ वेव में. This stator pulsating MMF wave is not a rotating MMF wave, इसलिए इसका सिंगल फेज मोटर का एनालिसिस डिफिकल्ट होता है. सो इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर, द रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या स्टेट करता है, दैट दिस स्टेशनरी बट पल्सेटिंग MMF वेव कैन बी रिजॉल्व इनटू टू काउंटर रोटेटिंग MMF वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड इक्वल टू हाफ एफएस मैक्स बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट सेम स्पीड which is equal to ns, synchronous speed equal to 120 f by p. ठीक है, ये सप्लाई का है, सप्लाई से आ रहा है ना, तो इसका सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा 120 f by p, f equal to 50 और पोल जितना भी पोलैरिटी डेवलप होता है अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ पोल. ठीक है, so now you can see with the help of these two rotating waveform, rotating stator waveform, we can analyze a rotating field concept we can use on these two rotating waveform, MMF waveform. This will produce rotating flux and this will also produce rotating flux but in opposite direction. ये वाला जो है फॉरवर्ड फ्लक्स, फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स होगा, ये बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स. रोटेटिंग फील्ड कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड, है ना, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में करते हैं रोटेटिंग फील्ड कंसेप्ट, बिकॉज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड देयर, इसमें नहीं होता है, इसलिए रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से we have split the stator MMF waveform, pulsating MMF waveform into two counter rotating MMF waveform. ठीक है, दिस इज द थ्योरी, रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी. आ रहा समझ में? तो इसके बाद अपन एनालाइज करेंगे, है ना, इससे थोड़ा और पढ़ना है रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, उसके बाद फिर उसका परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी. ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन था, इसके आगे और डिस्कस करेंगे. ठीक है, कागज पे लिख देना, लिख दिए, मैं एंट्री कर दूंगा, एंट्री कर दूंगा.